Good morning, children. So now we are in lecture number 9 of chapter 2, that is World War and Russian Revolution. Basically, this lecture is our final lecture, right? Means this is the last lecture of this chapter. Now what happened in World War? What factors were leading to World War? What was the thing that had took place in Europe for 5 years? I have explained in detail. More than explanation. Now, World War I ended with the Germans' defeat. If you remember, in lecture number 8, I taught you, in the last phase of World War I, King Wilhelm Kaiser abdicated the throne of Germany. Right? उससे पहले हम थोड़ा 8 लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं कि फैक्टर्स आपको मालूम है. फिर with no cause of reason, small cause, killing Austrian prince and queen in Serbia. Both of them came to clashes, and finally Austria declared war on Serbia, and World War I started. Now this was a problem between Austria and Serbia. There may be a question to you. If problem was between Austria and Serbia, why World War I took place? ऐसा हमारे जहन में भी आता है, दिमाग में आता है कि भैया प्रॉब्लम सर्बिया और ऑस्ट्रिया का था, तो पूरी दुनिया उसमें क्यों झुलझ गई? पूरी दुनिया को क्यों झोंक दिया? बराबर है? तो उसका भी जवाब चाहिए हमको. तो इसका जवाब मिलता है सीक्रेट ट्रीटीज में से, क्योंकि मैंने एक फैक्टर आपको पढ़ाया है ना कि नंबर ऑफ ट्रीटीज वर मेड एट दैट टाइम बिफोर World War I, and finally when war broke out, according to these treaties, world was divided into 2 groups. That is called Allied group and Axis group. Allied had 24 members, while Axis had 4 members. Though Axis was having only 4 members, it was headed by Germany. And Germany ने 1914 में जब वॉर शुरू हुआ, 14, 15, 17 तक, 16, 17 तक पूरे यूरोप पे डोमिनेट किया था. तकरीबन आधा यूरोप जीत लिया था. छोटे बड़े कई कंट्रीज हैं. बट when it drowned American steamer killing almost 150 soldiers, America joined the war because America was a neutral nation. America was not having anything with Germany or France or England. And that is why, because of Germans' action, America was forced to join the war. And now, America joined from the side of Allied. Now almost England and France were exhausted against Germany. But because of introduction of America, they got a new spirit, new momentum. नई चेतना का जन्म हुआ. Because America, when joined the war, it helped England and France with men, material and money. सब कुछ की मदद मिली. सो वो लोग रीजनरेट हो गए और सबने मिलकर जर्मनी को हराया. जब हार का सामना हुआ, जब
विलियम केजर ने हार देखना शुरू किया। सोचा कि अभी जर्मनी सारे वॉर फ्रंट से वापस जुट जाए। नाउ जर्मन्स कैन नॉट फाइट अगेंस्ट एग्रेशन। हार आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होने लगी। तब किंग विलियम केजर जर्मन प्रजा को, जर्मनी को भगवान के भरोसे छोड़ के चला गया, भाग गया। नाउ जर्मनी वॉज विदाउट द हेड, जर्मनी वॉज विदाउट द रूलर। बिल्कुल लाचार जर्मनी था और इसीलिए इन तीनों लोगों ने दबोच लिया जर्मनी को। जर्मनी हारा, हार स्वीकार करनी पड़ी। जर्मनी वाज फोर्स्ड टू सरेंडर and then World War I came to an end and then the changes started to take in Europe, out of which two changes I taught you in previous lecture. That was called destruction of man and material. And second thing was social change, जो मैंने आपको डिटेल में बताया था। शायद मैं थोड़ा भावुक भी हो गया था, right? Now today, as a part of third change, we will study Treaty of Versailles. क्योंकि मैंने बताया था थोड़ा लंबा है, इसीलिए मैंने 8th लेक्चर में आपको नहीं बताया, क्योंकि मैं डिटेल में बता सकता हूँ। So at the end of World War I, Treaty of Versailles was signed. समाधान करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं पीस प्रोसेस ऑफ वर्साइल्स। हिस्टोरियंस बोलते हैं कि इन ट्रीटी में ऐसे प्रोविजंस थे, राइट? There was so much rigid, strict provisions and restrictions on Germany that this treaty one day again will become the cause of World War II. वो आपको मैं 3rd चैप्टर में पढ़ाऊंगा। Because this treaty from the side of Germany was totally injustice. ट्रीटी बैलेंस होनी चाहिए। वॉर खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, कल की बात कल चली गई, आज क्या? लेकिन ऐसा नहीं हुआ था बच्चों, क्योंकि ये ट्रीटी फ्रांस में साइन की गई थी, वर्साइल्स में, पैलेस ऑफ वर्साइल्स। और आपको मैंने बताया था सीडान वॉर के वक्त जब जर्मनी ने फ्रांस को दबोच लिया था ऑलमोस्ट फॉर 50 इयर्स, 45 इयर्स, उसका बदला फ्रांस ने विथ इंटरेस्ट ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जर्मनी के पास से वसूल किया। है समझ में? इन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स France literally took revenge of that pain of 45 years, which they have perceived. जो जर्मनी ने उसको पेन दिया था, उससे ज्यादा पेन फ्रांस जर्मनी को देना चाहता था। और ऐसी ड्राफ्टिंग हुई जर्मनी में कि इतने मुद्दे बने कि जर्मनी आने वाले 100 साल तक कभी खड़ा नहीं हो सकता। Such a rigid and heavy restriction was put on Germany. Germany could not stand on their own legs for next 100 years. And that is why we can say Germany was humiliated in the world by Treaty of Versailles. Treaty of Versailles जर्मनी को साइन करवा के फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका ने जर्मनी को पूरी दुनिया में अपमानित किया था। एंड यू सी एज अ टाइम पास, समय किसी की मुट्ठी की धारा नहीं है जिसको हम कैद कर सके। जो जर्मनी आज लाचार था, बेबस था और फोर्सफुली, क्योंकि दैट ट्रीटी वाज साइन ऑन अ गन पॉइंट रेंज, गन नहीं थी,
गन पॉइंट रेंज से कम भी नहीं था, क्योंकि जर्मनी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। जो भी इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका बोले वो ही करने का था, क्योंकि उसका हेड तो गायब हो गया था, कहीं भाग गया था। तो इसीलिए ये 3 जो कंट्रीज बोले और जो लिखा है ट्रीटी में, उन सबका पालन तो करना ही पड़ता है। क्या करें, सब कुछ करना पड़ता है। So, when World War II broke out, the major cause of World War II was Treaty of Versailles. वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जब ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस अप्लाई हुई, एक तो जर्मनी ने वॉर करा था, सब कुछ खत्म हो गया था, उसके बावजूद ये ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस आई थी। इट वॉज वेरी वेरी एम्बैरेसिंग एंड ह्यूमिलेटिंग फॉर जर्मन्स। एक एक दिन वो अपमानित था होके जीते थे। इसीलिए द सेल्फ रिस्पेक्टेड जर्मन्स वर बर्निंग विथ रिवेंज, एंड बिकॉज ऑफ दैट वर्ल्ड वॉर II took place. You understand? Actually, World War II is a sequence of World War I. जो अन्याय जर्मनी को वर्ल्ड वॉर I में हुआ था, उसका बदला लेने के लिए वर्ल्ड वॉर II हुआ था। है समझ में? और इसकी मेन वजह क्या थी? ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। Am I clear, children? Treaty of Versailles was the main culprit, main villain for World War II. So, let us start with that Treaty of Versailles. Before that, let me check my timing. Right? And so, we can start with a new topic that is called Treaty of Versailles. So, shall we start, children? Page number 12. Right? Treaty of Versailles. Now, you have pen or pencil with you as per my instruction. I told you to mark that incidents or events or dates so you can easily cope up with the system. Okay, children? Shall we start? Ready with your pen or pencil? Okay? Shall I start? Good. At the end of First World War, put your eyes in your textbook. I am reading out. मैंने आपको पूरा समझाया था क्या हुआ था. Now it is my topic of reading, so you must have your eyes in textbook. So ultimately you can easily understand what I want to explain to you. Am I right, children? Okay. At the end of First World War, the unconditional surrender of Germany in the front of Allied nation brought the end to the war. Why Germany surrender unconditionally? आपको अभी मैंने बताया था। क्यों? कि उसका जो राजा था वो जर्मनी को छोड़ के भाग गया था। अब घर का मुखिया ही नहीं है तो घर के अदर मेंबर्स क्या करेंगे? तो जर्मनी को सरेंडर करना ही ऑप्शन बचा था। There was no other option left except surrender. Because Germany was without the head. और उसके हेड का कोई अता पता नहीं था, कहाँ भाग गया। है समझ में? Then the Allied nation undertook peace process in Paris. ये पीस प्रोसेस नहीं थी, ये वर्ल्ड वॉर II की नींव रखी जा रही थी। The seeds of World War II was sown by Treaty of Versailles. ये यूरोपियन हिस्ट्री ऐसी बोलती है। If you study European history after World War I, you will study that the seeds of World War II was sown when the Treaty of Versailles was signed. उसी वक्त
आगाज हो गया था कि नक्की इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, नक्की एक दिन इसका ब्लास्ट होगा, एक दिन ये सब चीजें का जो अंदर मेंशन की गई थी, जर्मनी उसका बदला लेने जरूर आएगा। ऐसी like injustice done to Germany. Understood? Let us see. The Allied nation undertook the peace process in Paris, in which some 58 commissions were formed. 58 कमेटी बनाई गई थी, क्या करना है क्या नहीं करना, और सारी कमेटी का काम क्या था, जर्मनी को हम कैसे दबोचे, कैसे कंगाल जर्मनी को ज्यादा कंगाल बनाए, कैसे उनको एक्सप्लॉइट किए करे ताकि अगले 100 साल तक जर्मनी अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सके। और ये सब फ्रांस की निगरानी में होता था, क्योंकि फ्रांस को तो दुश्मनी थी, जर्मनी ने 45 साल तक तो लुटा ही था, तो उसका वो बदला भी लेगा ना। सो दिस ट्रीटी टर्न पर्सनल बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। Understood? Some 58 commissions were formed and 145 sessions were organized. 145 टाइम सेशन लिए गए थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, आज जो नक्की हुआ था कल कैंसिल होता था, कल कुछ नहीं आता था, कल जो कोई आया वो परसों नहीं आता था, परसों कुछ नहीं आता था, ऐसे कर करके 58 कमिटीज ने 145 सेशन तक काम किया। सोचो कितना डीप थिंकिंग किया होगा। और ये सब डीप थिंकिंग किसके वास्ते था, कैसे जर्मनी को खत्म कर दिया। क्लियर? द एग्रीमेंट मेड विद जर्मनी ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस was made in the mirror palace of Versailles. Versailles is a small place, a palace, 16 kilometers away from Paris, where King and Queen of France used to stay. And after the death of King and Queen, when France turned democratic, then Paris was still over there. जैसे हम देखते हैं कि after 1947, India became democratic nation. फिर आज भी हमारे भारत में कई सारे बड़े बड़े महल देखते हैं कि नहीं। मान लो हमारा नीलम बाग है, तो नीलम बाग आजादी के पहले इट वॉज ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ आवर किंग श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, हमारे जो राजा थे भावनगर के कृष्ण कुमार सिंह जी, वो उधर रहते थे, बराबर है। लेकिन आजादी के बाद भी आज नीलम बाग तो उधर है ही। आज आप राजस्थान घूमने गए होंगे बच्चों अच्छे समय में, अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो राजस्थान में हर एक सिटी में कितने बड़े बड़े महल हैं। आपने बड़ौदा का महल देखा होगा, राजकोट का महल देखा होगा, बराबर। तो ये सारी चीजें हमारी धरोहर है, हमारे कल्चर है, हमारे हेरिटेज है। तो जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, और रेवोल्यूशन की वजह से किंग और क्वीन को फांसी दी गई थी, बराबर। किंग लुइस 16 फ्रांस का जो आखिरी राजा था, किंग लुइस 16 एंड क्वीन मैरी एंटोनी, दिस वाज द नेम। They both were hanged to death, and there was a revolution in France. And this revolution, French became democratic. But still, the official remains, that is called Palace of Versailles, was still there as a marker for their heritage. So, in this palace, Germany was forced to sign this treaty. Basically, ये पैलेस को मिरर पैलेस बोलते हैं, शीश महल, right? 16 kilometers away from Paris. That is it. Thus, it is called Treaty of Versailles. There are 4 provisions in the Treaty of Versailles. Number 1, regional arrangement.
वो तो सही है कि जो वॉर के वक्त जो कंट्रीज है, जो छोटी मोटी जगह है, कई देश जीते हैं, वो वापस दे देंगे। राइट। नंबर 2, रिडक्शन इन ट्रूप्स एंड डिसआर्मामेंट। जर्मनी ने जो रेस शुरू किया था ना मिलिट्रिज्म के नाम से, नेशनल बिल्डिंग ऑफ आर्मी और वो सब, उसको रिड्यूस करना, वेपन्स पे पैसा खर्च कम करना, ट्रूप्स भी आधे से ज्यादा सोल्जर्स को भी रिटायर कर देना। राइट। थर्ड, अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स बाय द एंड ऑफ वॉर फाइट। जैसे सेडान वॉर में जर्मनी ने फ्रांस पे वॉर फाइट लगाया था, ठीक वैसी तरह आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी वाज फाइंड टू पे द वॉर एक्सपेंस टू दिस नेशंस, that is England, France and America, amounting to 66 crore pounds. That is called 6.66 billion pounds. उस वक्त 66 करोड़ पाउंड का जुर्माना जर्मनी पे लगा था। अच्छा, इतनी बड़ी रकम कहां से निकाली? जर्मनी भी कंगाल हुआ था। तो सेडान वॉर की तरह जब तक जर्मनी ये पैसा नहीं चुकाता, पैसा नहीं पाउंड्स, तब तक जर्मनी के जो रिच मिनरल एरिया थे, राइट, द एरिया नियर रिवर राइन, राइट, जो जर्मनी की प्राइम नदी राइन है, उसके जो नॉर्थ वेस्ट इलाके के जो एरिया है, वो उसके एलाइट के कब्जे में रहे। And second was a part of Stuttgart, because from this area Germany used to obtain coal, iron, all these things. जब तक ये पैसा नहीं दिया जाता तब तक इधर से ये तीनों माइनिंग करके अपने घर ले जाएंगे, जैसे जर्मनी और फ्रांस ने किया था। अभी फ्रांस ने जर्मनी में शुरू किया। मैंने बोला था ना, फ्रांस सूद समेत वसूल करने के मूड में था। समझ में? The arrangement of distribution of gains at the end of war and warfare and other provisions. The American President Woodrow Wilson, British Prime Minister Lord George, अंडरलाइन करो बेटा, ये कौन से लोग ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में प्रेजेंट थे? The American President Woodrow Wilson, British Prime Minister Lord George, फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लेमेंको, उसके नाम भी थोड़े अटपटे होते हैं, बराबर है, क्लेमेंको, एंड इटालियन प्रेसिडेंट ऑर्लांडो played a very important role in this treaty. They were the prime people to sign this treaty, right? Germany was found responsible for the war. सब दोष का टोकरा, पूरे वर्ल्ड वॉर 1 का जो दोष था वो जर्मनी पे उन लोगों ने डाल दिया। जर्मनी प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता था कि भाई वॉर हमने अकेले थोड़ा किया है, आपने भी किया है, लेकिन प्रोटेस्ट करने वाला तो कोई होना चाहिए ना। कौन से हिसाब से वो प्रोटेस्ट करे, किसकी मदद से वो प्रोटेस्ट करे? बराबर है। Germany was found responsible for the war. A war fine of 6.5 billion pounds. It is not 6.5, it is 6.6. Cancel करेगा, आप लिख लो। A war fine of 6.5 billion pounds, 6.6 billion pounds was imposed on Germany. और जब तक ये पैसा नहीं चुकाया जाता, तब तक जर्मनी का 2 रिच मिनरल टेरिटरी फ्रांस ने अपने कब्जे में ले लिया। It has given a rule land to France, an area near river Rhine, उसको rule land बोलते हैं। Its Rhine river had to be
opened for international sea route. जर्मनी ने वो रूट बंद कर दिया था, वो रूट खोलना पड़ा ताकि सीधा सामान बाहर से फ्रांस तक आ सके, क्योंकि फ्रांस में भी राइन पास आउट होती है। फ्रांस ने बहुत सोच समझ के ये चाल चली थी ताकि वो जर्मनी को खत्म कर दे। Its Rhine had to be opened for the international sea route. The Rhineland region on the French border was disallowed from being fortress, as well as Middle Ridge region was given to France for 15 years. 15 साल तक उधर से फ्रांस मिनरल्स निकाल के अपने घर ले जा सकता है। जर्मनी चुपचाप तमाशा देखेगा, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। क्यों? कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में मेंशन किया गया है कि आपको कुछ नहीं बोलना है। क्लियर? मोस्ट ऑफ द जर्मन्स ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉन्फिस्केटेड, सब पे बैन लगा दिया था और अपनी पपेट सरकार बनाई थी इन 3 लोगों ने, जो उसके इशारे पे चले। Alsace and Lorraine was returned to France. जो फ्रांस के 2 इलाके ले लिए थे जर्मनी ने, वो वापस देना पड़ा। अभी फ्रांस ने जर्मनी का 2 इलाका ले लिया। Most of the German organization were confiscated. Alsace and Lorraine was given back to France. Besides this, Germany was to give to France and other allied nations a large quantity of coal and iron. सिर्फ फ्रांस को नहीं, दूसरे भी देश को, अमेरिका और इंग्लैंड को भी आयरन और कोल देना पड़ेगा जुर्माने के तौर पर, दंड के तौर पर। तो ये जर्मनी कहां से उठ सकता है? अगर सब कुछ बाहर को देगा तो अपने लिए वो क्या करेगा? वो कैसे उठेगा? वो भी तबाह हो चुका था, उसको भी जरूरत थी, लेकिन वो कैसे उठ सकता है? How can Germany rise? Right? Besides this, Germany was to give France and allied nation a large quantity of coal and iron annually as the war benefits. Germany was made to sign these terms and condition on gunpoint. Circle this word, gunpoint. जबरदस्ती ये ट्रीटी जर्मनी को साइन करनी पड़ी थी। ये ट्रीटी जर्मनी के अगेंस्ट में थी। जर्मनी कतई साइन नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने लीडर ना होने से वजह से वो क्या करे? सबकी बात माननी पड़ेगी ना, क्या करे? Germany was made to sign these terms and conditions on gunpoint, and forcibly, because of which there was a bitterness of desperation among Germans. Germans हार चुके थे, इतना डिप्रेशन आ गया था जर्मन प्रजा में जिसकी कोई सीमा ही नहीं। एक तो 5 साल वॉर चला, उसमें सब खत्म हो गया। अभी ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स आया, क्या करें? Consequently, the German economy failed miserably. जर्मनी की इकोनॉमी बिल्कुल खलास हो गई, खत्म हो गई। वॉर ने खत्म कर दिया था, जो बचा कुचा था वो फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका ने ले लिया था। पैसा देना था वॉर का, जुर्माना कहां से निकाले, कैसे मैनेज करें? और कंट्री का मालिक भी नहीं था, तो कैसे देश को चलाए? कौन चलाए? कोई मुखिया भी नहीं था। तो इतनी खराब हालत जर्मनी की हो गई जिसकी कोई बात ही नहीं कर सकते, जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। Right? Long-term effects. There was a feeling of revenge in signing the treaty with a nation that was defeated in the war. भयंकर जहर था जर्मनी में, राजी खुशी ये साइन नहीं हुआ था। Peace could not be established by the treaty. Socialist Russia was not given place in the League of Nations.
America did not join League of Nations. वो आगे हम बात करेंगे. And that is why it can be said that the reason for Second World War is the Paris peace process of World War One. जो भी मैंने आधे घंटे से समझा रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू का नींव, उसका फाउंडेशन वर्ल्ड वॉर वन में रखा गया था. अगर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बैलेंस होती तो शायद वर्ल्ड वॉर टू नहीं होता, शायद हिटलर मुसोलिनी इतने पावरफुल नहीं होते. और अगले चैप्टर में बात करेंगे. राइट, नाउ कम टू पेज नंबर 14, रशियन रेवोल्यूशन 13 सॉरी. ये पूरा पक्का आपको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में पता चल गया ना. नाउ we'll switch over to Russian Revolution. Okay, children? Let us see. The Russian Revolution in 1917 is considered as a important event in world history. लड़ाई के बीच में ही revolution हुआ, because at that time Russia was ruled by tyrannical kings called czars. एक के बाद दूसरा खतरनाक था, दूसरे के बाद तीसरा खतरनाक था. Russian people has lost all their hopes. There was a great disparity in Russia. पूरा यूरोप आगे बढ़ चुका था, रशिया पीछे था. 200 साल तक यूरोप के पीछे था रशिया. People were running freedom. But जार लोग, जार राजा इतने खतरनाक थे, तो फिर उनकी बात ही मत करो. इसलिए रेवोल्यूशन हुआ. This is called Bolshevik Revolution. Okay, children? Let us see. The Russian had been oppressed and suppressed by the Tsars of Russia. Tsars मतलब उसके राजा की डायनेस्टी. The Russian Tsars who inherited the position were all dictators and enjoyed uncontrolled rule over the people. हम भगवान हैं, शायद भगवान से भी बड़े हैं. हम जो बोले वही करने का. People did not have any rights during that period. The Tsars were so cruel and pitiless. Pitiless means दया वगैरह, निष्ठुर. ये लोगों ने उनमें જરાય દયા નહોતી કે મારી પ્રજા છે, મારે લોકોનું ભલું કરવું જોઈએ. એકલી લૂંટફાટ. સમજાણું? Pitiless for the people that if anyone demanded the rights, they were tortured, suppressed and severely punished. और एक को पनिशमेंट मिलती, सब चुप हो जाते. And condemned to be sent to bone chilling that cold of Siberia. साइबेरिया में डिपोर्ट कर देते थे. और साइबेरिया में इतनी ठंडी होती है, इंसान उधर तड़प तड़प के मर जाता. The Russian farmers, laborers and peasants were not given enough income. जो उगाते थे, प्रोडक्शन होता था कारखाने में, सब राजा ले जाते थे. राजा का हक था. महज सैलरी भी नहीं मिलती थी. 2 टन खाने का भी लाने पड़ जाते थे. Despite working hard, they became poor. तो ये सारी सिचुएशन में से बाहर आने के लिए 22 January 1905 में under the leadership of Father Gapan, जो priest थे, almost 10,000 people went to Tsar's palace, Petersburg, not for their demanding their rights, but just for some mercy. कि हमको कुछ हमारे लायक तो दो यार, हम इतना काम कर रहे हैं, दो टन का रोटी का भी इंतजाम करो. पीसफुल डिमांड की, लेकिन जार ने आधे से ज्यादा को मार दिया. That is called Bloody Sunday. That incident is called Bloody Sunday. जैसे हमारे हिस्ट्री में जलियांवाला बाग है, ठीक उसी तरह रशियन हिस्ट्री में ब्लडी संडे है. जैसे जनरल डायर ने ब्रिटिशर में कितने निहत्थे लोगों को मारा था जलियांवाला बाग में, ठीक उसी तरह फादर गैपन से तकरीबन 5 से 6 हजार लोगों को मार दिया था Tsar ने. And people lost the faith in Tsar and revolutions. Right? Under the leadership of Father Gapin, a royal plane was taken to the Tsar's precision. Winter Palace, 22nd January 1905 Sunday.
People were unarmed. While some of the Tsar pictures had captioned living, long live our Lord of Russia. उसको प्रेस करने गए थे, आप खूब सलामत रहो, सुखी रहो, लेकिन कुछ हमारा सुनो। 99% आप सही हो, लेकिन हम 1% तो सही होंगे ना, है समझ में? Tsar army opened fire on these innocent people, because of which thousands of innocent people died, and the snow of Petersburg, where the Tsar palace was situated, turned into red with blood. हजारों लोगों की हत्या कर दी, मार डाला। This is called Bloody Sunday in the history. Around this time, a large number of Russians who got provoked and became restless for the weakness of the Tsar regime became obvious when the small nation like Japan defeated a massive Russia in 1945. उसके बाद वॉर हुआ जापान के साथ। जापान तो बहुत छोटा राष्ट्र है, लेकिन ये छोटे राष्ट्र ने रशिया को हरा दिया। लोगों को बहुत गुस्सा आया, खुश हुए कि जो जार हमारे पे दमन कर रहा था, दादागिरी कर रहा था, हमारे नियत के भाई बहन को मारा है, वो आज हारा है। जार ने लोगों की सिंपैथी जीतने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन लोगों ने सपोर्ट ही नहीं दिया। जार लोगों की नजर में से गिर गया था आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे, राइट? In order to pacify the anger of Russians, Tsar announced the call of Duma. Duma means Russian parliament, legislature, out of which was not taken place for years. पार्लियामेंट जैसा कुछ हुआ ही नहीं था, सरकार जैसे कुछ बात ही नहीं थी, लेकिन अभी सरकार बनाने की बात हुई, लोगों को शांत करना। Eventually, 4 such Dumas were called. 4 बार लोगों को विनती करके बुलाया था, लेकिन लोग नहीं गए थे, क्योंकि जार पे से पूरा भरोसा टूट चुका था। जार हमारा राजा कहने के काबिल नहीं है, right? But before it can take this satisfied, it was called off. On 8th March 1917, the oppressed workers of Petrograd took on strike. The Tsar sent the troops to contain the event, लेकिन ट्रूप्स तो भी हथियार नहीं उठाए। जार की आर्मी भी जार के अगेंस्ट हो गई थी, but the army refused to shoot the people. As a result, the revolution began. After the fall of Tsardom, the power fell into the hands of Karnevsky. पहले कार्नेस्की के हाथ में सत्ता आई, leader of Menshevik group, minority group. Except for Lenin, everyone in Russia was happy with the fall of Tsar. लेकिन लेनिन खूब आगे का सोचने वाला था। रशिया में दोबारा क्रांति हुई, तो 1919 में रशिया में लेनिन की सत्ता आई, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। But Lenin believed in the importance of labors of Petrograd by Karl Marx, while the Menshevik group believed in the importance of middle class. As a result, Lenin instigated the Bolshevik, its lower class, against Menshevik in November 1917 and declared the final revolution in the hands of Russia. So it is also called Socialist Bolshevik Revolution. रशियन रेवोल्यूशन को हिस्ट्री में बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, क्यों? कि लेनिन के हिसाब से हुआ था। ओके, नाउ लीग ऑफ नेशंस, द हॉरर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर। वो तो मैंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में आपको समझाया ना, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। द हॉरर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर explain the absolute necessity for world peace, and for this need the need of international organization was felt, and that is why on 10th January 1920 a League of Nations was formed, international body। जैसे हमारा यूएन है ना, ऐसे लीग ऑफ नेशन बना था। अच्छा, उसकी एम क्या था? अब पढ़ो, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, शांति से रहने का। Every nation must respect the unity and integrity of other nations. सबका मान सम्मान होना चाहिए, कोई छोटा नहीं है पर कोई बड़ा नहीं है, सब अपनी जगह पे सही है। Third, to give up the policy of war. Fourth, to develop international relations.
Fifth, to solve international disputes peacefully through negotiation and mediation. Mediation is बातचीत. हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वॉर नहीं है, बात भी कर सकते हैं. If any nation ignores the League of Nations or its mediators, it will be declared rebel. Right? But League of Nations could not maintain world peace. And in 1940, 1939, World War II broke out. League of Nations failed. Right? उसकी जिम्मेवारी में लीग ऑफ नेशन फेल हुआ था. सो ये मेरा लेसन खत्म हुआ. आपको पूरा लेसन समझ में आ गया होगा. Now it is your time to take your homework. Come on. Number 1. Short note on treaty of Versailles. वहाँ पर स्पेलिंग पूछा treaty of Versailles. Question number 2. Short note on Russian Revolution. Russian Revolution. 3. Mention the aims of League of Nations. Right? ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है. क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट नोट ऑन ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, शॉर्ट नोट ऑन रशियन रेवोल्यूशन, and mention the aims of League of Nations. So with this, we are ending chapter number 2. In next lecture, we will start chapter number 3. Right, children? Till then, take care, stay safe, goodbye, okay?